involved with the NBA process almost every year here at the engineering college. And apart from that, he is a very well traveled and very well exposed to various experiences, various institutions across countries and across states. He was at the Jam Emilia. He was at the University of Berkeley in California. And he has been a LEAP participant. He spent a week in the Ohio State University. Professor Beg wears several hats. Today, he will speak to us on outcome based education, and on one more occasion, he has promised to be with us under a second hat that he wears, and that is of a very successful Alumni Affairs Committee chairperson. So, today, we will be benefited by his presentation on outcome based education. We all know, as part of FIP and also as part of our own quality assurance initiatives in every host institution, this is a new area we need to know about. So thank you, Professor Big. We can see your slides. They are in the presentation mode and they are moving too. So it's over to the very eminent resource person for today, Professor Mirza Mohammed Sufyan Beg. Thank you very much, Dr. Faiza Abbasi, for introducing me to this lovely audience. I always love talking to the young faculty members because they bring in a lot of energy. And that is one of the advantages of being a teacher. You are always surrounded with people younger than you in most of the cases. And you really try to imbibe energy that is oozing out of them. Indeed, So indeed. So let's get started. Today we are going to discuss about outcome-based education and how does it assure quality for us. Dr. Faiz has already introduced me. I'm the principal of the engineering college at the Aligarh Muslim University right now. So let us talk about outcome-based education and quality assurance today. One of the intriguing things in life is the ever-raging struggle between quality and quantity. It is almost always there at the back of our minds that quantity and quality are two contradictory terms. If you talk about quality, we shouldn't be talking about quantity. If you're talking about quantity, let's not talk about quality. But that is not quite true. We have to look at quantifying quality as well. And the reason why I say this is the good old saying, what you can't measure, you can't control. जो चीज हम मेजर नहीं कर सकते वो हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, if we can't measure temperature, we can't control temperature. If we can't measure speed, we can't control speed. The point that I'm trying to make, let me narrate an incident, or let me call it as an accident that happened when an Air France flight crashed in the Atlantic Ocean while flying over the Atlantic Ocean, flying from Brazil to Paris a few years back. All of you must be much younger then. So वो flight crash हुई Atlantic Ocean में, a very sad accident. Everybody on board got perished. But we have to learn a lesson from that sad accident, from the tragic accident. Lesson ये है कि when people started investigating the cause of the crash, and they dug out the remains of the human beings, the human remains from the depth of the ocean, to their surprise and shock, the bones of every human being, every human body was broken. That was pretty intriguing thing. भाई प्लेन क्रैश हुआ है, अटलांटिक ओशन में क्रैश हुआ है, ओशन में क्रैश होके बोन्स ब्रेक होने का क्या सेंस है? People kept on investigating and they finally came to the conclusion that actually the speed sensor of the aircraft had gone bad. The aircraft oversped to the extent that even at that height, due to the air pressure, it broke into two. And because of the air pressure, the bones of the human beings got broken before the plane plunged into the ocean and everybody drowned and perished. A very sad accident. लेकिन इससे क्या पता लगा कि speed sensor of the aircraft was so important that when it went bad, there was no way to control the speed of the aircraft. है ना? ये तो अब हम लोग हाईवे वगैरह पे भी गाड़ी चलाते हैं,
तो अगर स्पीडोमीटर नहीं देखते हैं तो पता नहीं लगता कि गाड़ी इतनी तेज चल रही है ना। स्पीडोमीटर देखना पड़ता है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, है ना। जमीन पे तो फिर भी कुछ अंदाजा हो जाता है, द ट्रीज आर गोइंग बैक, द रोड इज गोइंग बैक अंडरनीथ द कार, कुछ अंदाजा हो जाता है। उस हाइट पे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि प्लेन कितनी स्पीड से चल रहा है। So if you can't measure speed, you can't control it. Likewise, if you can't measure quality, you won't be able to control it. तो क्वालिटी को मेजर करना पड़ेगा अगर उसको कंट्रोल करना है तो, बिकॉज ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल, व्हाट यू कांट मेजर यू कांट कंट्रोल, है ना। So the bottom line is that assessing the attainment of quality is the key to quality control and enhancement. भाई क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे तो enhancement ही की बात करेंगे, क्वालिटी गिराने की तो बात नहीं करेंगे। तो कंट्रोल कैन बी ईदर वे, इंक्रीजिंग द स्पीड और डिक्रीजिंग द स्पीड, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, लेकिन क्वालिटी के रिस्पेक्ट में इट इज ऑलवेज enhancement. So the attainment of quality, assessing the attainment of quality is the key to quality control and enhancement. ठीक। अब what are the levels of quality in education? The first and the foremost level is the approval. You have the bare minimum infrastructure in place. You have the classrooms, you have the teachers, you have the library, you have the labs, you get the approval. For example, in technical education, All India Council for Technical Education provides the approval. फिर एक उससे ऊपर का लेवल होता है जिसमें हम क्वालिटी की बात करने लग जाते हैं. We start talking about quality. ISO certification you must have heard about. ISO certification is done for so many products and services. So ISO certification is also done for education, International Organization for Standardization. Now we start checking the quality, whether the classrooms are smart classrooms or not, what are the teaching aids available, what is the qualification of teachers who are teaching, how latest how advanced are the equipment in the labs, और बुक्स जो हैं वो कितनी अच्छी हैं लाइब्रेरी. यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी मेजर्स. सो इज दैट अनफ? क्वालिटी की बात हमने कर ली, इज दैट अनफ? नो, वी स्टिल गो फॉर एक्रेडिटेशन. व्हाई? बिकॉज एक्रेडिटेशन डज नॉट merely talk about quality check, it talks about mutual recognition as well. And this mutual recognition comes from an accord that must have been signed by different countries, है ना. आगे बात हम करेंगे, एग्जाम्पल देंगे वॉशिंगटन अकॉर्ड की. This is basically an agreement signed between various countries that if you conform to the standards being decided, the degree awarded by you will be mutually recognized by all the signatory countries, है ना. तो ये जो पावर आ रही है एक्रेडिटेशन के अंदर, वो क्वालिटी चेक से बढ़कर है. कोई आईएसओ सर्टिफिकेशन लेकर हमारे पास आया, वी मे एक्सेप्ट, वी मे रिजेक्ट. हम रिजेक्ट कर दें तो nobody is there to question. But if somebody comes with an accredited degree, we cannot refuse, because there is quality level there already, plus we are duty bound by the agreement that we have signed that we will mutually recognize the accredited degree. देखिए, इसको फर्दर समझने के लिए एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल समझ लीजिए. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, मैं दूसरी कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और ये बात आपको पता होनी चाहिए सिंस यू आर इन द एकेडमिक फील्ड. इन इंडिया, no university can become a university unless passed by an act of law. I'll repeat. In India, no university can become a university unless passed by an act of law. ऐसा नहीं है कि मैं कोई इंस्टीट्यूशन खोल के उसको यूनिवर्सिटी कहना शुरू कर दूं. I cannot do that. I'll have to necessarily get it passed by an act of law before I start calling my institution as a university. So if it happens to be an act of the Indian Parliament, that becomes a central university. If it happens to be an act of any state assembly, then it becomes a state university. ठीक है. तो अगर कभी आपसे कोई पूछता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या फर्क है, सो द डिफरेंस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द एड दैट दे गेट, कि सेंटर उनको एड कर रहा है या स्टेट एड कर रहा है. वो भी हो सकता है, लेकिन बेसिक रीजन ये है कि उस यूनिवर्सिटी का एक्ट कहां पास हुआ,
पार्लियामेंट में हुआ तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और स्टेट असेंबली में हुआ है तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी है ना। अच्छा, अब बहुत सी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, उनको कहीं से एड नहीं मिल रही है, लेकिन वो सेंट्रल प्राइवेट हैं या स्टेट प्राइवेट हैं, दैट विल अगेन बी डिसाइडेड बाय द प्लेस वेयर द एक्ट हैज बीन पास्ड। तो सबसे ऊपर तो होता है एक्ट, एक्ट के अंदर पावर आई उस पार्लियामेंट से या उस असेंबली से। फिर एक्ट के नीचे होते हैं स्टैट्यूट्स, जो कि इस एक्ट का फर्दर एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। फिर उसके नीचे होते हैं ऑर्डिनेंस, फिर उसके नीचे होते हैं रेगुलेशंस। सो सबसे ऊपर एक्ट। अब स्टैट्यूट्स में पावर कहां से आ रही है? दैट इज कमिंग फ्रॉम द एक्ट। Ordinance is getting its power from the statutes, which in turn is getting its power from the act. Regulations are getting the power from the ordinance, that is getting power from statutes, and that is getting power from act. तो अब the powers of a vice chancellor, एक्ट नहीं बताएगा पावर ऑफ द वाइस चांसलर, लेकिन एक्ट ने स्टैट्यूट्स को पावर दी है कि वो वाइस चांसलर की पावर को डिफाइन कर सके। अगर वाइस चांसलर कोई एक्शन लेगा तो दैट विल बी वैलिड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। व्हाई? बिकॉज इट इज गेटिंग पावर फ्रॉम अबव। सो पावर परकुलेट्स डाउन। बिल्कुल इसी तरह की बात है कि एक्टिवेशन में वो पावर आ रही है उस एग्रीमेंट से जो सिग्नेटरी कंट्रीज ने साइन किया हुआ है। चलिए आगे, अब आगे इसको और भी अभी समझने की कोशिश करेंगे। इन इंडिया वी हैव ईदर NAC और NBA. We all know that NAC is an institute wide accreditation. NAC ने किसी को accreditation दे दिया तो all the degrees awarded by that institution they stand accredited. NBA is degree specific accreditation. If NBA provides accreditation to say BTech in computer science, so it stays with BTech in computer science. You can't stretch it to BTech in IT even. You can't stretch it to MTech in computer science. तो डिग्री स्पेसिफिक एक्रेडिटेशन NBA देता है और इंस्टीट्यूट वाइड एक्रेडिटेशन इज गिवन बाय NAC। दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। अब NAC में यह है कि जो वीकर डिग्रीज होती हैं वो भी एक्रेडिटेशन मिल जाता है उनको। NBA ये कहता है कि नहीं, ऐसा ना हो कि वीक डिग्री की वजह से स्ट्रॉन्ग डिग्री भी रह जाए, उसको भी ना मिले एक्रेडिटेशन। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। NBA कहता है कि जो डिग्री स्ट्रॉन्ग है हम उसको देंगे, जो वीक है हम उसको छोड़ देंगे। NAC कहता है या तो सबको लो या सबको छोड़ो, है ना। तो अपने अपने उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। अब व्हाट इज एक्रेडिटेशन, ये समझने की जरूरत है। व्हाट इज एक्रेडिटेशन? देखिए, दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ एक्रेडिटेशन। अब आप सोच रहे होंगे वन ऑफ द डेफिनेशन का क्या मतलब? डेफिनेशन तो एक ही होनी चाहिए। बात आपकी सही है, लेकिन जब बहुत ही हम किसी डाइवर्सिफाइड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होते हैं तो इट मे नॉट बी पॉसिबल टू डिफाइन इट बाय अ सिंगल डेफिनेशन। पीपल डिफाइन इट इन देयर ओन वेज। दिस इज द डेफिनेशन दैट आई लाइक अबाउट एक्रेडिटेशन। लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द गुड ओल्ड स्टोरी जो हम सब ने सुनी है अपने अपने चाइल्डहुड डेज में, कि some blindfolded people were asked to describe an elephant. The person who touched the trunk of the elephant, he said it's like a python. Somebody who touched the tummy of the elephant, he said it's like a wall. Somebody who touched the legs of the elephant, he said it's like a tree trunk. Somebody who touched the ears of the elephant, he said it's like a hand fan. अब वही एनिमल एक ही है, एलिफेंट है, लेकिन अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज इट इज टू बिग एन एनिमल। बिल्कुल इसी तरह एक्रेडिटेशन वो एलिफेंट है जिसको एक डेफिनेशन से शायद ना डिस्क्राइब कर सके, बट दिस इज वन ऑफ द बेटर डेफिनेशन दैट आई हैव कम अक्रॉस एंड दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग। अब क्या है ये? फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन एज द केस में बी। प्रोग्राम इन द केस ऑफ NBA, इंस्टीट्यूशन इन द केस ऑफ NAC, जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया। बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इम्पार्शियल असेसमेंट। ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, एक्सटर्नल एजेंसी, इम्पार्शियल असेसमेंट ऑफ द अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अगेंस्ट वेल डिफाइंड क्राइटेरिया। वेल डिफाइंड क्राइटेरिया को भी अंडरलाइन किया है। क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि एक्सटर्नल एजेंसी को करना चाहिए। आप ये कहें कि साहब इंटरनल से हम करा लेंगे और इम्पार्शियल कराएंगे, नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट लेट इट बी बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, बिकॉज सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज।
अच्छा, एक्सटर्नल एजेंसी तो आपने कर ली, लेकिन असेसमेंट इम्पार्शियल नहीं है, तो इम्पार्शियल भी होना चाहिए। देखिए अगेन, टू वर्ड्स आर देयर, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। हम लोगों को, टीचर स्टूडेंट्स को बहुत एक नैरो परसेप्शन होता है सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी का। हम इसको क्वेश्चंस की टर्म्स में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब्जेक्टिव इज ऐसे टाइप, है ना। अगर वो मल्टीपल चॉइस है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक है, तो ऑब्जेक्टिव है। ऐसे टाइप है तो सब्जेक्टिव है। क्यों? बिकॉज ठीक है, वो आप बात सही है, बट दैट इज अ वेरी नैरो परसेप्शन ऑफ सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये कि नो मैटर हु इवेलुएट्स, करेक्ट रिमेन्स करेक्ट, फॉल्स रिमेन्स फॉल्स, ट्रू रिमेन्स ट्रू, फॉल्स रिमेन्स फॉल्स। सब्जेक्टिविटी में ऐसे लिखा, एक टीचर ने किया तो उसने 10 में से 8 दे दिए, द अदर टीचर गेव 9 आउट ऑफ 10, वन गेव 8.5, सो इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसी तरह एक्रेडिटेशन शुड बी इम्पार्शियल, शुड बी ऑब्जेक्टिव। उसका आप ऐसा क्राइटेरिया बनाइए कि नो मैटर हु इवैल्यूएट्स, द मार्क्स शुड नॉट वेरी, और एटलीस्ट द मार्क्स शुड नॉट वेरी मच, है ना। तो वो इम्पार्शियल असेसमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं यू शो मी द फेस, आई विल टेल यू द रूल, नो, इट हैज टू बी इन एन इम्पार्शियल वे। और फिर वेल डिफाइंड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया पहले से आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम इसके ऊपर तुमको इवैल्यूएट करेंगे। ये नहीं कि आप, यू हैव टू टेल दी रूल्स ऑफ द गेम बिफोर द गेम बिगिंस। इट कैनॉट बी दैट द गेम हैज बिगन एंड नाउ यू आर डिफाइनिंग द रूल्स। पहले गोल मार लिया, फिर कहा कि नहीं नहीं ये गोल नहीं पड़ा इसलिए कि गोल पोस्ट सही नहीं था, गोल पोस्ट यहां कर दो तो गोल मान लिया जाए। नो, यू डोंट हैव टू चेंज द गोल पोस्ट। आप पहले से उसको डिक्लेयर कीजिए। यही है आउटकम बेस्ड एजुकेशन। पहले से उसको डिक्लेयर कीजिए, हर किसी को बताइए कि ये हम इवैल्यूएट करने जा रहे हैं। फिर भी कोई नहीं तैयारी करता है, तब उसको पकड़ा जाएगा, है ना। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग पकड़ने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, बताने के चक्कर में नहीं रहते, हम पकड़ने के चक्कर में रहते हैं, है ना। आई ट्रेवल टू द यूनाइटेड किंगडम, so my friend who was driving his car started beeping. So I asked him, why is it beeping? He said there is a police van nearby. मैंने कहा तुम्हें ये गाड़ी को कैसे पता है? उसने कहा यहाँ एक डिवाइस मिलती है, कोई पुलिस वैन आसपास होती है तो ये डिवाइस बीप करने लगती है। मैंने कहा इज इट लीगल? दैट वाज समथिंग सरप्राइजिंग फॉर मी। ही सेड या इट्स वेरी वेरी मच लीगल। यहाँ पर ये आउटलुक है कि अगर पुलिस वैन, आपको पता है कि पुलिस वैन है और फिर भी आप फॉल्ट कर रहे हैं, तब आप पकड़े जाएंगे। वो पहले से बताएंगे कि हम हैं यहाँ पर, और फिर भी आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, तब पकड़े जाएंगे। Contrary to this, it happened with me. I went to the Delhi airport to pick somebody up. He was an elderly person. तो मैं थोड़ा चाह रहा था उनको जितना करीब से मैं पिक कर सकूं। तो एक पुलिस वाला बैठा हुआ था। आई स्टार्टेड ड्राइविंग द कार इन फ्रंट ऑफ हिम स्लोली। मैं अंदर ले जाने लगा कि अगर रोकना होगा तो रोक देगा। उसने रोका नहीं, मैं चला गया। उनको अंदर से जब पिक करके मैं बाहर निकला तब उसने रोका, आप अंदर क्यों गए? मैंने कहा मैं तुम्हारे सामने से अभी ड्राइव करके गया हूं, तब तो तुमने रोका नहीं। So you know what he said? He said अगर मैं उस वक्त रोक लेता तो अब पकड़ता कैसे आपको, है ना। सो दैट इज आवर मेंटालिटी कि हम पकड़ने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, रोकने के चक्कर में नहीं रहते हैं। तो ये पहले से वेल डिफाइंड क्राइटेरिया हो कि हम ये चाह रहे हैं, तुम करो इसको। हम पकड़ना नहीं चाह रहे, हम करवाना चाह रहे हैं। ओके, so the formal recognition of an educational program institution by an external agency on the basis of impartial assessment of the attainment of specific requirements against well defined criteria. ये डेफिनेशन, एक डेफिनेशन एक्रेडिटेशन की हो गई। Talking about accreditation, India, just now I said, institutional accreditation by National Assessment and Accreditation Council, NAC, an autonomous body established by the University Grants Commission in 1994. Technical programs में National Board of Accreditation, they provide accreditation to the diploma level to postgraduate level in engineering, management, architecture, pharmacy, hospitality, and mass communication. And the list may go on. They may keep adding further trades. Now, what is the significance of accreditation? At national level, it becomes easier for students and parents to select the institution and programs for admission. भाई accreditation है तो वहां पे admission ले लो, नहीं है तो मत लो. It's your choice.
Likewise, it helps employers in deciding about the institutions for recruitment of graduates, right? तो एम्प्लॉयर्स के लिए भी अगर एक्रेडिटेशन है तो वहां से उनको ले लो, पिकअप कर लो, रिक्रूट कर लो, नहीं है तो छोड़ दो. It helps institutions to avail the benefits from regulatory bodies and funding agencies. It happened with us. Since all the UG programs and most of the PG programs in our engineering college were accredited by NBA, we could get a hefty grant from TEQIP, Technical Education Quality Improvement Program, a World Bank project. 15 crores हमको मिले second phase में, और फिर further 7.7 crores in the third phase, and we were made mentors of other engineering colleges just because we had the accreditation with us. ऐसी नैक की बेसिस पे भी आपने सुना होगा, ग्रेड 1 ऑटोनॉमी, ग्रेड 2 ऑटोनॉमी, ग्रेड 3 ऑटोनॉमी उन्होंने डिफाइन की हुई है. So it helps the institutions to avail the benefits from regulatory bodies and funding agencies. It also helps institutions in deciding about transfer of students or exchange of students from other institutions. है ना? अगर दो institutions दोनों accreditation है, they are at the same level, so they can seamlessly exchange students between them. Please mute. So they can seamlessly exchange students, है ना? Exchange students or transfer of students. एक accreditation मिला हुआ है, एक को नहीं मिला हुआ है. Then it will be a question mark whether to exchange students or not. So these are all the national level benefits and significance of accreditation. At international level, mobility of students for pursuing higher studies and or employment in other countries. So the mobility of students becomes seamless because by virtue of accreditation, the signatory country cannot refuse the acceptance of a degree from an accredited institution. इसको और elaborate करते हैं, ग्लोबल मोबिलिटी से क्या मतलब है हमारा. ये जो ग्लोबल मोबिलिटी की हमने बात की, इंटरनेशनल लेवल मोबिलिटी, this one. So what does that mean? There are multinational accords for mutual recognition of accrediting process and thereby recognizing the accreditation. For example, Washington Accord was signed in 1989 for engineering degree program, Sydney Accord in 2001 for engineering diploma polytechnic programs, Dublin Accord in 2002 for engineering technician program, Seoul Accord in 2008 for professional engineers in computing and IT related fields. तो ये सारे accord से power आ रही है accreditation में. For example, Washington Accord. This was an accord signed among 6 countries to begin with: Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK and US in the year 1989. अब मान लीजिए आयरलैंड किसी डिग्री को एक्रेडिटेशन दे रहा है. आयरलैंड का जो एक्रेडिटेशन बोर्ड है, दैट इज प्रोवाइडिंग एक्रेडिटेशन टू एनी डिग्री इन देयर कंट्री. तो इस अकॉर्ड की वजह से, इस एग्रीमेंट की वजह से, दैट डिग्री विल हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स. नो कंट्री कैन रिफ्यूज because they have signed to this agreement to this effect. ऐसा ही अगर न्यूजीलैंड किसी डिग्री को एक्रेडिटेशन दे रहा है, न्यूजीलैंड का एक्रेडिटेशन बोर्ड, so that will have to be necessarily accepted by Australia, Canada, Ireland, UK and United States. Nobody can refuse an accredited degree which has been provided accreditation by the New Zealand board. है ना? ये पावर आ रही है जो कि क्वालिटी प्लस म्यूचुअल रिकॉग्निशन की है. The purpose was to mutually recognize and accept the qualifications accredited by signatory countries. The accord at present has 15 full signatories and 5 provisional signatories. The list may keep increasing or decreasing. अब आप सोच रहे होंगे भाई इंक्रीजिंग तो समझ में आती है, डिक्रीजिंग क्यों होगा? हो सकता है डिक्रीजिंग. जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मे नॉट बी करेक्ट बट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, रशिया यूक्रेन में वॉर हुई. अब वॉर टाइम में यूक्रेन में विदड्रॉ फ्रॉम द अकॉर्ड, इसलिए कि अब किसी सिग्नेटरी कंट्री का कोई स्टूडेंट आएगा तो वो फिर बाय वर्च्यू ऑफ अकॉर्ड दे कैन नॉट रिफ्यूज. तो अब वो विदड्रॉ कर लेंगे कि भाई ठीक है, हमारी डिग्री तुम मत मानो, तुम्हारी डिग्री हम नहीं मानेंगे टिल सच टाइम दैट आई कम बैक टू द अकॉर्ड. तो इस तरह इन सच सिचुएशंस द कंट्रीज में विदड्रॉ आल्सो फ्रॉम द अकॉर्ड. लेकिन इट गोज बोथ वेज. आपने विदड्रॉ कर लिया तो आपकी भी डिग्री नहीं मानेगा कोई
और किसी और की डिग्री आपको आप प्रतिबद्ध नहीं है किसी और की डिग्री मानने को, है ना। अब देखिए, मेंबर्स ऑफ वॉशिंगटन अकॉर्ड हैव आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन। तो आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन में पावर कहां से आई? वॉशिंगटन अकॉर्ड से आई। जैसे एक्ट से पावर आई स्टैट्यूट्स में, स्टैट्यूट से ऑर्डिनेंस में, ऑर्डिनेंस से रेगुलेशंस में, इसी तरह आउटकम बेस्ड एजुकेशन की पावर आ रही है वॉशिंगटन अकॉर्ड से, बिकॉज वॉशिंगटन अकॉर्ड में लोगों ने एग्री किया हुआ है कि वी विल फॉलो द आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन। तो ये सिग्नेटरीज ऑफ वॉशिंगटन अकॉर्ड, इंडिया हैज आल्सो बीन एडेड, और लिस्ट में कीप चेंजिंग। अब एक्रेडिटेशन मॉडल्स क्या क्या हैं? देखिए, एक है मिनिमल मॉडल, डज नॉट इनकरेज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आज की डेट में आपका इंस्टीट्यूशन या डिग्री कैसी है उसको देखा और हमने एक्रेडिटेशन दे दिया। वी आर नॉट फ्यूचरिस्टिक, वी आर नॉट फ्यूचरिस्टिक, विच इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स विद द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, एक ब्रिज बनाना है तो हम आज के ट्रैफिक की बेसिस पर नहीं बनाएंगे, हम अगले 15 साल का ट्रैफिक डेटा प्रेडिक्ट करेंगे, एक्सट्रापोलेट करेंगे, and on the basis of that extrapolation I'll design the bridge. In developing countries, what happens? By the time the bridge gets completed, since I've taken the data of today, the bridge has already fallen short of the requirement, क्योंकि ट्रैफिक एक्सीड कर चुका है ना। तो फ्यूचरिस्टिक जो चीज नहीं होती है कि आइंदा हम क्या कर रहे हैं, राइट, देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये तो मिनिमल मॉडल होता है। फिर एक इनपुट आउटपुट मॉडल, क्या आपने देखा इनपुट कैसा आया, यानी स्टूडेंट्स कैसे आया, और आउटपुट कैसा निकला, ग्रेजुएट्स कैसे निकल रहे हैं। फिर एक है आउटकम बेस्ड मॉडल। देखिए, मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज देयर इज अ वेरी फर्टाइल पीस ऑफ लैंड, देयर इज एम्पल वाटर, आई एम प्रोवाइडिंग द बेस्ट सीड्स, आई एम प्रोवाइडिंग द बेस्ट फर्टिलाइजर्स, बट स्टिल द क्रॉप इज नॉट अप टू द मार्क। So that means there's something fundamentally wrong. कुछ कहीं गड़बड़ हो रही है। Something's fundamental. What ultimately matters to a farmer? The crop or the yield. How is the yield from that field? That is more important to a farmer. इसी तरह outcome based model में ठीक है, we'll have to have a reasonably good input, but what ultimately matters is the output that is emerging, the graduates that are emerging from there. Just as the crop or the yield is what matters ultimately. ठीक, अब आउटकम बेस्ड एजुकेशन को डिफाइन करते हैं। आउटकम बेस्ड एजुकेशन इज स्टार्टिंग विद अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू बी एबल टू डू, देन ऑर्गेनाइजिंग द curriculum, डिलीवरी एंड असेसमेंट टू मेक श्योर लर्निंग हैपेंस। पहले गोल सेट करना पड़ेगा। इट हैपेंस, सपोज इन एथलेटिक्स देयर इज अ हाई जंपर, right, so he or she sets the bar first. वो पहले बार सेट करेगा, फिर असर्ट करेगा टू क्रॉस दैट बार। एक वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर पहले वेट सेट करेगा, फिर जोर लगा के उसको उठाएगा। ऐसा नहीं होता कि हाई जंपर कहे कि पहले मैं कूद लूं फिर तुम नाप लेना कितना कूदा, or a weightlifter says let me lift it and then you can see how much I've lifted. You have to set the goal first. You might be thinking that I'm giving the examples from sports, whereas I'm talking about outcome-based education. Let me give you an example from the education realm as well. Any good book, the author in the beginning of the chapter tells you what all you must expect to learn from this chapter. चैप्टर के शुरू में बताएगा कि आपको यहां से क्या सीखना है, इस चैप्टर में से क्या सीखना है, क्या फायदा होता है। नाउ यू आर अटेंटिव, कॉशियस ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ दैट चैप्टर। जब कभी आपको वो पॉइंट मिला जो शुरू में उसने कहा था ये सीखना, यू गेट एक्स्ट्रा कॉशियस कि अरे ये तो सीखना है यहाँ पर। फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर ही अगेन कंक्लूड्स एंड प्रोवाइड्स अ समरी बाय सेइंग दैट दिस ऑल यू हैव लर्नड। अब आप असेस करते हैं कि आपने ये सीख लिया कि नहीं सीखा। नहीं सीखा, देन यू स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर ऑल ओवर अगेन। ठीक है, तो वो शुरू से बता देने में इट इज ऑलवेज गुड, बिकॉज पीपल आर कॉन्शियस अबाउट व्हाट दे मस्ट एक्सपेक्ट। तो इसी तरह स्टार्टिंग विद अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू बी एबल टू डू,
And let that be known to all the stakeholders, to the students, to the faculty members, to the parents, to the employers. Everybody must know that this is the expected outcome of our graduates. Then organizing the curriculum, delivery and assessment. ये तीन चीजें. Curriculum according to the clear picture. Delivery of the course according to that clear picture, or assessment according to that clear picture, to make sure that learning happens. So this is outcome-based education. Pictorially, you have the outcome-based education, what the student should be able to do. How to make the students achieve the outcome. तो इसके लिए आपका outcome-based curriculum, outcome-based learning teaching. And finally, what you can't measure, you can't control, you assess that outcome. How to measure what the students have achieved. ठीक? तो ये outcome-based education है. You set the goals first, then you organize the curriculum, teaching, learning, and assessment in such a way that the learning happens in the direction which is already set as a goal in the beginning. अब ये देखिए एक नटशेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. मैं आपसे कहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर और इसको कहीं रख लीजिए, क्योंकि हम इसको बार बार अभी रेफर करेंगे. दिस इज द पिरामिड ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन. ये सारी टर्म्स हम अभी डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इट थ्रेडबेयर. अभी तो बस इसको देख लीजिए कि एट द टॉप इज द विजन. In order to reach that vision, you have mission statements. In order to reach that mission, you have program educational objectives. फिर उसके लिए प्रोग्राम आउटकम्स होते हैं which are aligned with graduate attributes, और प्रोग्राम आउटकम्स तक पहुंचने के लिए कोर्स आउटकम्स होते हैं. As I said, I'll be explaining all of them very shortly. Just bear with me. अभी तो सिर्फ आप एक इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए. विजन एट द टॉप, मिशन बिलो इट, program educational objectives, program outcomes, and then course outcome. So this is designed from top to bottom. सबसे पहले विजन सेट किया जाएगा, फिर उस विजन को मीट करने के लिए मिशन स्टेटमेंट्स होंगे, फिर उसको मीट करने के लिए प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फिर उसको मीट करने के लिए प्रोग्राम आउटकम्स, और उसको मीट करने के लिए कोर्स आउटकम. असेसमेंट नीचे से ऊपर चलेगा. सबसे पहले आप कोर्स आउटकम का असेसमेंट करेंगे. Course outcomes are the attributes that a student should have while passing every course in every semester. और जैसे जैसे कोर्सेस पास करता जा रहा है, वैसे वैसे वो प्रोग्राम आउटकम की तरफ बढ़ता जा रहा है, which are the attributes that he or she should have at the time of graduation. फिर प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो फील्ड में जाने के बाद सेल्फ डेवलप करेगा, 4-5 साल में सेल्फ डेवलप करेगा अपने अंदर. वो प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं. फिर मिशन और विजन है. तो असेसमेंट नीचे से ऊपर जाता है, डिजाइन ऊपर से नीचे होता है. अब एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं. पहले विजन. विजन क्या, इसको समझने की जरूरत है. Again, I'll tell you a story. When we were studying our undergraduate days, we had a professor of mechanical engineering who had an old Fiat car. Those were the times when only 2 cars were there, Fiat and Ambassador. तीसरी गाड़ी होती थी तो वो imported होती थी. In India, we only had these 2 cars, Fiat and Ambassador. So he had an old Fiat car, at the back of which there was a sticker which read, "When I grow up, I want to be a Rolls Royce." एक पुरानी Fiat कार के पीछे ये स्टिकर लगा हुआ था, "When I grow up, I want to be a Rolls Royce." So that is a beautiful example of the vision. That was the vision of the car. What do you want to become when you grow up? How do you want your institution to grow 50 years, 40 years, 30 years down the line? That is the vision. When I grow up, I want to be this. Or when my institution grows, it should be something like this. फिर mission are the shorter goals to achieve that vision. जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, अगर आप में से कोई कंप्यूटर साइंस का टीचर होगा तो बहुत आसानी से समझ लेगा. इन ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग. अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं भी आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं भी पढ़ा है, तब भी फ्रॉम द वेरी नेम ऑफ इट यू कैन गेस. लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग इज विजन एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग इज मिशन.
जैसे अगेन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, सपोज देयर इज अ प्लेयर हु वांट्स टू बिकम अ नंबर 1 प्लेयर इन द होल वर्ल्ड, दैट इज हिज और हर विजन, आई वांट टू बिकम नंबर 1। अब उस विजन को अचीव करने के लिए उसके शॉर्ट टर्म मिशन स्टेटमेंट्स होंगे कि इन दिस सीरीज और इन दिस टूर्नामेंट आई हैव टू स्कोर सो मेनी रन्स, आई हैव टू होल्ड सो मेनी कैचेस, आई हैव टू टेक सो मेनी। तो अब हर मैच बाय मैच, सीरीज बाय सीरीज, ही और शी इज इंचिंग टुवर्ड्स हिज और हर विजन। अगर वो अपना मिशन मीट करता रहेगा तो एक दिन आएगा कि वो नंबर 1 भी बन जाएगा, है ना। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग इज मिशन, एंड दैट शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग हैज टू बी डन इन ऑर्डर टू मीट द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ योर विजन। ठीक, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन। अब विजन मिशन आएगा कहां से? कोई आसमान से तो उतरेगा नहीं, या ऐसा नहीं होगा कि आप सो गए आपको ड्रीम में दिख गया कि भाई ये विजन रख लो अपने डिपार्टमेंट का। यू हैव टू, वॉट एवर इज एक्वायर्ड द हार्ड वे दैट स्टेज, और जो इजी टेक होता है यू डू नॉट वैल्यू इट मच। तो अब डिपार्टमेंट विजन मिशन कैसे सेट करना है? मैं डिपार्टमेंट विजन मिशन की बात कर रहा हूं इसलिए कि आप लोग अभी यंग हैं, अभी डिपार्टमेंट विजन पे जब आप आगे प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, वाइस चांसलर्स बनेंगे तब आपको इंस्टीट्यूट विजन मिशन भी देखना पड़ेगा और प्रोसीजर सिमिलर होगा। अभी तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट विजन और मिशन से अलाइन होना चाहिए डिपार्टमेंट विजन मिशन। ऐसा ना हो इंस्टीट्यूट विजन मिशन तो किसी और डायरेक्शन में और डिपार्टमेंट विजन मिशन किसी और डायरेक्शन में। दैट शुड नॉट बी द केस, है ना। फिर आपको एक जोक सुना दूं मैं कि आपने सुना होगा 4 दोस्त थे, उन्होंने एक गाड़ी खरीदी, टैक्सी में चलाएंगे, पूरा दिन हो गया, कोई किसी ने हायर नहीं किया। भाई क्यों नहीं हायर किया? बिकॉज ऑल द 4 ऑफ देम दे केप्ट सिटिंग इनसाइड द कार द होल डे। अब किसी को कार खाली नहीं दिख रही थी तो कोई क्यों हायर करता? तो उनको समझाया गया नहीं भाई कार को खाली रखो तब तो लोग हायर करेंगे। नेक्स्ट डे द कार ब्रोक डाउन, वाज नॉट स्टार्टिंग, so they kept pushing the whole day but the car did not start। क्यों नहीं स्टार्ट हुई भाई? तो पता लगा 2 आगे से पीछे धक्का मार रहे थे और 2 पीछे से आगे धक्का मार रहे थे, तो गाड़ी बढ़ी नहीं, स्टार्ट कैसे होती? तो ऐसा ना हो कि विजन मिशन तो आगे से पीछे धक्का मार रहा है इंस्टीट्यूट का और डिपार्टमेंट का पीछे से आगे धक्का मार रहा है। दे शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, तब तो फायदा होगा। अगर डायरेक्शंस अलग अलग होंगी तो फिर फायदा नहीं है ना। और फिर उसके बाद यू हैव टू हैव अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। आप फैकल्टी को इन्वॉल्व कीजिए, उनसे व्यू लीजिए, इंडस्ट्री से व्यू लीजिए, मैनेजमेंट से व्यू लीजिए, डेटा ऑन फ्यूचर इन ऑर्डर टू बी फ्यूचरिस्टिक, एक्सट्रापोलेट कीजिए डेटा कैसा होगा फ्यूचर में। प्रोफेशनल बॉडीज से आप देखिए कि उनका वो क्या चाह रहे हैं, कैसे इंस्टीट्यूट को डेवलप करना है। पेरेंट्स से पूछिए वो अपने बच्चों में क्या चाह रहे हैं। देखिए कंसल्टेशन इज अ प्रोसेस इन विच जरूरी नहीं है कि आप सबकी बात माने, लेकिन सबकी बात सुनिए। अगर आप नहीं भी मानेंगे लेकिन उनकी बात सुनेंगे, दे विल बी विद यू दैट वी आर बीइंग हर्ड, आवर व्यूज आर बीइंग टेकन इनटू अकाउंट। और आप उनसे पूछेंगे नहीं, चाहे जितनी अच्छी पॉलिसी बना लेंगे, नोबडी विल गो विद दैट बिकॉज दे हैव नॉट बीन इन्वॉल्व्ड, है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या कि ये एक इटरेशन में नहीं बनेगा, आपको इसको सेवरल इटरेशंस लेने पड़ेंगे। एक वर्जन 1.0 बनाइए, फिर दोबारा जाइए उसको देखिए इंस्टीट्यूट विजन मिशन से अलाइन है कि नहीं है। फैकल्टी, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, डेटा ऑन फ्यूचर, प्रोफेशनल बॉडीज, पेरेंट्स, उनके व्यूज फिर से लीजिए, फिर उसको रिफाइन कीजिए। इस तरह से सेवरल इटरेशंस लेने के बाद जब लोग मुतमईन हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, दैट बिकम्स द इंस्टीट्यूट विजन एंड मिशन। एंड अगेन दिस इज नॉट कार्व्ड इन स्टोन। ऐसा नहीं वो पत्थर में लगा दिया क़यामत तक लगा रहेगा, नहीं। यू सेट एन एक्सपायरी डेट कि आज से 40 साल बाद हम दोबारा इस पे बैठेंगे, विजन को देखेंगे। आज से 20 साल बाद हम मिशन को रिविजिट करेंगे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। करेक्शन की जरूरत होगी तो करेक्शन करेंगे, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, वी मे एज वेल कंटिन्यू विद इट, बट we'll have to sit back again and introspect and review this। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जो आपका सवाल था कि भाई इंस्टीट्यूट विजन मिशन कैसे बनाया जाए, उसको किससे अलाइन किया जाए। सो दैट हैज टू बी अलाइन विद द फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट, एंड दैट हैपेंड विद अस व्हेन वी वर डिफाइनिंग द विजन एंड मिशन ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज, व्हिच इज अ कॉलेज। हमारे डिपार्टमेंट्स तो हमारे कॉलेज के विजन मिशन से अलाइन हो जाएंगे। हम किससे अलाइन हो?
So for that we had to align with the vision of our founder, Sir Syed Ahmad Khan, who wanted to have peaceful coexistence, academic excellence and scientific temper. तो अब देखिए इससे अलाइन करके हमने अपने कॉलेज का विजन कैसे बनाया, टू बिकम एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस. देखिए एक्सीलेंस यहां से बोरो किया. अच्छा, साइंटिफिक यहां से लिया लेकिन उसमें टेक्निकल ऐड किया, बिकॉज वी आर द इंजीनियरिंग कॉलेज. Scientific and technical education and research with standards at par with national and international institutes of repute, and to serve as quality human resource provider. Quality human resource provider, जिसमें ओवरऑल क्वालिटी हो, सिर्फ टेक्निकल नहीं हो, ओवरऑल हो, फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस टू द सोसाइटी एंड इंडस्ट्री. सिर्फ सोसाइटी नहीं बल्कि इंडस्ट्री में भी. अब इस विजन से देखिए, फाउंडर के विजन से अलाइन करके हमने अपने इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का विजन बनाया. अब इस कॉलेज के विजन को रीच करने के लिए वी हैड द मिशन स्टेटमेंट्स. To offer state-of-the-art UG, PG doctoral programs, to make policies and atmosphere to attract and retain best faculty, to create an ambience in which new ideas and cutting-edge research flourish through effective curriculum and infrastructure, so as to produce the leaders and innovators of tomorrow, to produce ethically strong and morally elevated human resource to serve mankind, to undertake collaborative projects and consultancy for long-term interaction with the academia and industry, and to be among top 10 engineering institutes of India. तो ये हमारे मिशन स्टेटमेंट्स हैं. अगर हम इनकी तरफ बढ़ते रहेंगे तो हम विजन की तरफ बढ़ते रहेंगे. ठीक है, तो ये तो दो बातें हो गई, विजन मिशन, है ना. अगेन अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो देखिए ऊपर की दो बातें, विजन मिशन, ये हमने कवर किया. अब अगली है पीईओ और पीओ. पीओ जैसा मैंने बताया वो एट्रीब्यूट्स हैं विच द स्टूडेंट शुड हैव एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, और PEO are the matured graduates attributes 4-5 years down the timeline. देखिए बच्चा हमारे पास से जब पढ़ के गया तो ग्रेजुएशन के वक्त हमने उसको नहीं बताया था कि तुम्हें कैसा मैनेजर बनना है, कैसा बिजनेसमैन बनना है, कैसा टीचर बनना है, कैसा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है. आफ्टर ज्वाइनिंग हिज प्रोफेशनल फील्ड, हाउ डिड ही और शी सेल्फ डिवेलप. 4-5 साल में वो कैसा उसने डिवेलप किया अपने आप को एज अ मैनेजर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ टेक्नोक्रेट और एज अ टीचर, है ना. फिर पीओ आर अलाइन विद ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स विच द क्वालिटी ऑफ एनी ग्रेजुएट शुड हैव. इसीलिए यहाँ पर पीईओ के साथ हमने यहाँ जीएसएस को अलाइन किया था उस फिगर में, अगर आप उसको रिफर करें तो ये हमारा पीईओ और ये हमारा पीओ. ठीक है, तो ये दो हम पहले कर चुके हैं, अब हम इन दो को डिस्कस कर रहे हैं. एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको. इन नॉर्थ इंडिया मैंगोज आर प्रेटी फेमस. मैंगोज आर राइप. प्रोग्राम आउटकम, पक गया, फल पक गया, ग्रेजुएशन के बाद फल पक गया, इसीलिए वो ग्रेजुएट कर रहा है. दैट इज पीओ. बट हाउ डज दैट स्मेल, हाउ डज इट टेस्ट, हाउ डज इट लुक लाइक, दैट इज पीईओ. टेस्ट कैसा है उसका, लोग कैसे उसको पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, फील्ड में जाकर क्या उसका एक्सेप्टेबिलिटी है. सो दैट इज पीईओ, राइट. तो ये इन दोनों में फर्क है. ऊपर वाले दोनों इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट वाइड हैं, ये प्रोग्राम स्पेसिफिक है. प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स. अगेन हाउ डू यू डिफाइन पीईओस, व्हाट इज द प्रोसेस. अब देखिए इंस्टीट्यूट विजन मिशन से तो अलाइन करके आपने डिपार्टमेंट विजन मिशन बनाया, इससे अलाइन करके आप पीईओ बना रहेंगे और ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को भी लेंगे आप. फिर कंसल्टेशन प्रोसेस होगा फ्रॉम फैकल्टी, स्टूडेंट, डेटा ऑन फ्यूचर, एलुमनाई, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल बॉडीज. इन सब के व्यूज को कलेक्ट करेगा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर. द व्यूज आर समराइज्ड बाय द प्रोग्राम असेसमेंट कमिटी और एक्सेप्टेड with review or without review by the department advisory board. हो सकता है डिपार्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड कहे कि नहीं, इसको वापस ले जाओ और फिर से प्रोसीजर फॉलो करो, फिर से अलाइनमेंट देखो, फिर से फैकल्टी, स्टूडेंट, डेटा ऑन फ्यूचर, एलुमनाई, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल बॉडीज देखो और वर्जन 2.0 लेकर आओ. इस तरह से 1, 2, 3, 4 इटरेशन जितनी भी जरूरत हो वो लेने के बाद when finally department advisory board accepts, that becomes your PEOs.
Again, they are not carved in stone. They'll have to be revisited, say 10 years, 6 years, 7 years down the line. तो जब कभी विजन मिशन बनाए, पीईओ पीओ बनाए, उसकी एक एक्सपायरी डेट तय कीजिए कि ये एक्सपायर कर जाएगा 15 साल में, 20 साल में, हमको फिर बैठना पड़ेगा. हो सकता है एक्सपायरी के वक्त हमारी ये एनालिसिस हो कि सेम में कंटिन्यू, विल कंटिन्यू फॉर अनदर 15 years, बट विल हैव टू रीविजिट. अब ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स की बात करें, क्योंकि प्रोग्राम आउटकम्स हमारे ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं. दे आर 12 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स. पहले तो नॉलेज. अब हमने तो इंजीनियरिंग नॉलेज लिखा हुआ, आपका जो एरिया हो उसकी नॉलेज. प्रॉब्लम एनालिसिस, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, मॉडर्न टूल यूसेज, है ना. ऐसा नहीं है कि चीजें तो एडवांस हो गई, हम वहीं फावड़ा खुरपी से ही जमीन खोद रहे. If there are modern tools, we have to learn how to use those tools efficiently. फिर इंजीनियर एंड सोसाइटी, है ना, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ये सब भी इश्यूज हैं. देखिए, लेट मी थ्रो अ क्वेश्चन बिफोर यू. व्हाई सिलिकॉन वैली इज सिलिकॉन वैली? My answer to this question is Silicon Valley is Silicon Valley because Stanford University and University of California at Berkeley are there. These are the two giant countries which have developed an ecosystem around them. वहां के ग्रेजुएट्स ने स्टार्टअप्स किए, वो सक्सेस स्टोरीज बन गए, फिर उनके और ग्रेजुएट्स उन्होंने उसको ज्वाइन किया, एंड देन इट स्टार्टेड ग्रोइंग. Unfortunately, in our country, even the best institutes, IITs, IIMs, central universities, outside the four walls of that institution, a rickshaw puller, a tea seller, or a hawker just doesn't know what this IIT or IIM or central university is all about. So the benefits are not percolating down to society. That is the problem. So one of the graduate attributes is that engineer, or for that matter, any educated person, should be serving the society. ऐसे देखिए, environment and sustainability. I have no hesitation in saying that we, the engineers, are the biggest culprit of destroying our environment. When we were young, this polythene came, everybody was overjoyed. Arey, wonder material hai saab. Or it can hold water also. Or it is a bad conductor of heat, a good insulator of electricity, or ye or wo. We overused polythene. And now we are crying hoax. कि अरे साहब, ये तो डीके नहीं हो रहा, क्या होगा, एनवायरमेंट हैजर्ड हो गया. एक जगह मैंने पढ़ा, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. समझिए इसको, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. पॉलिथीन वाला सबक अभी हमने सीखा नहीं है. आज की डेट में वी आर टॉकिंग अबाउट सोलर एनर्जी सो मच. हर जगह सोलर पैनल लगा दिए, एंड वी आर नॉट envisaging 20 years, 25 years down the line when we were discarding all these solar panels, इसका क्या होगा. अरे जिस दिन बना रहे हैं उसी दिन सोचना पड़ेगा कि 20-25 साल बाद इसका क्या करना है हमको. तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ऐसे ही एथिक्स. अगर एक इंजीनियर अनएथिकल हो जाए तो पूरा देश बेच खाए. इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, अकेले भी हम काम कर सकें, टीम के साथ भी कर सकें. सिंगल्स भी हम अच्छा खेल लें, डबल्स भी अच्छा खेल लें, तब तो अच्छे प्लेयर हैं. सिंगल्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, डबल्स नहीं खेल पा रहे हैं, सो आई एम नॉट अ टीम प्लेयर. ऐसे कम्युनिकेशन इज सो इम्पोर्टेंट. जो कुछ हम सीख रहे हैं या हमारा एक्सपीरियंस है, वी शुड कम्युनिकेट टू अदर्स. Again, I'll give you a practical example. See the difference between the modern system of medicine and the traditional systems, Ayurveda ho, Hakimi ho, Unani ho, whatever. What is the difference? Communication is the difference. Modern medicine and surgery has developed so much कि अब तो हार्ट ट्रांसप्लांट की बात हो रही है. एनिमल का हार्ट लगा दिया ह्यूमन बीइंग्स में. कैसे? जहां तक एक ने रिसर्च की थी, कम्युनिकेट किया, दूसरे ने उससे आगे स्टार्ट किया. हमारे वैद और हकीम ने क्या किया कि जो उनकी नॉलेज थी वो अपने साथ लेके कब्र में चले गए, शमशान में चले गए, अपने बेटे को भी नहीं सिखाया. तो हर कोई वाज रीइन्वेंटिंग द व्हील, स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन. तो दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही लाइफ लॉन्ग लर्निंग डजंट स्टॉप द डे यू ग्रेजुएट. इनफैक्ट
PhD is not about doing research, it is about learning how to do research. आप सीखते हैं कि रिसर्च कैसे करनी है, फिर जिंदगी भर करनी है. कोई MBBS करके कहे काम खत्म, कहा जाएगा नहीं तो काम तो अब शुरू होगा, अब तक तो सीख रहे थे. इंजीनियरिंग करके कोई कहे काम खत्म, नो, द वर्क इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ. तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग. ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फिनेंस, एवरीथिंग रन्स ऑन मनी. तो फाइनेंस भी देखना पड़ेगा, और मैनेज नहीं करेंगे, डेडलाइन पे हम नहीं उसको डिलीवर कर पाएंगे तो बेकार है. हम डैम बना रहे थे फ्लड से आने से पहले और वो डेडलाइन पे नहीं बन पाया, फ्लड आ गया तो पूरा डैम ही बह जाएगा, है ना. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो ग्रेजुएशन के वक्त किसी इसमें ग्रेजुएट के अंदर होने चाहिए. इन्हीं से हम अपने पीओज बनाएंगे. ये वही ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स के का एक्सप्लेनेशन है व्हिच वाज ऑलरेडी गिवन, तो मैं स्किप कर रहा हूं उसको. So program outcomes are narrower statements that describe what students are expected to know and be able to do by the time of graduation. So by the time of graduation is important. Guidelines for the POs. Program outcomes basically describe knowledge, skills and behavior of students as they progress through the program as well as by the time of. जैसे जैसे courses पास करते जाएंगे वैसे वैसे उनके अंदर ये knowledge, skills, behavior आते जाएंगे. POs should not be too broad. They must align with the graduate attributes and they must reflect all the graduate attributes. सारे graduate attributes को cover कर रहे हो. And they should contribute to achieve POs. Upward compatibility भी होनी चाहिए, है ना, कि PEOs को meet करने में POs help करें. ये guideline है POs की. Process of defining POs is very similar to that of defining PEOs. अब सिर्फ क्या है कि इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट के विजन मिशन से अलाइन करके आपने पीईओस बनाया था, पीईओस से अलाइन करके आपको पीओस बनाने, है ना. फिर वही ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, प्रोफेशनल बॉडीज, एलुमनाई, इंडस्ट्री, डेटा ऑन फ्यूचर, स्टूडेंट, फैकल्टी. व्यूज आर कलेक्टेड बाय प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, समराइज्ड बाय प्रोग्राम असेसमेंट कमिटी, एक्सेप्टेड और रिव्यूड बाय द डिपार्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड्स. एक बार बन गया तो डिफाइंड पीओस विद एन एक्सपायरी डेट, कि आज से 6 साल बाद हम दोबारा बैठेंगे और इसको हम रिविजिट करेंगे, है ना. अब एक नई टर्म है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम. तो पीओ और पीएसओ में क्या फर्क है? पहली बात तो ये कि पीओ और ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स में 1-to-1 अलाइनमेंट होता है. प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स में बी लेसर इन नंबर बट वेरी स्पेसिफिक टू अ प्रोग्राम. एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं. टेक इट जस्ट एज एन एग्जाम्पल. ये कोई मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं. टेक इट एज एन एग्जाम्पल, एज एन एजुकेशनिस्ट. देखिए, MA in history is taught at the Aligarh Muslim University, that is taught at Banaras Hindu University. MA in history is taught at say Jawaharlal Nehru University. POs तो MA in history के सेम होंगे, चाहे वो AMU में हो, चाहे BHU में हो, चाहे JNU में हो. But PSOs may vary. For example, the PSO of MA in history in AMU may be the medieval history. At BHU it may be the ancient history. At JNU it may be the modern history. हमारे हिस्ट्री के 3 फेजेस हम कहते हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको सिर्फ, नॉट कमेंटिंग ऑन द अप्रोचेस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस. इसी से आप समझ लीजिए कि भाई ठीक है, कोई केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, 2 जगह डिपार्टमेंट्स हैं. एक जगह केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में दोनों के पीओ सेम होंगे एमएससी केमिस्ट्री के, लेकिन पीएसओ में डिफर. एक जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस होगा, दूसरी जगह एनालिटिकल होगा, कहीं पर फिजिकल केमिस्ट्री फोकस होगा, राइट. सो दैट इज द प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम व्हिच मे बी लेसर इन नंबर बट वेरी फोकस्ड एंड स्पेसिफिक टू अ प्रोग्राम. अब लास्ट चीज जो उस पिरामिड में बची है वो कोर्स आउटकम्स है. विजन हो गया, मिशन हो गया, पीईओ हो गया, पीओ हो गया, अब कोर्स आउटकम्स, है ना, जो हर कोर्स के आउटकम्स होंगे. They should be student focused, not professor focused. स्टूडेंट के हिसाब से बनाना है, अपने हिसाब से नहीं बनाना है. Which means it should be learning and not coverage oriented. There has to be alignment between course, program and institutional levels. यानी ये ऊपर से नीचे तक alignment होना चाहिए. ये चीज कोर्स लेवल है, पीईओ पीओ जो है प्रोग्राम लेवल है, और विजन मिशन जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल है. Focus on ability central to the discipline. Focus on aspects of learning that will endure. यानी कि आज सिखा दिया और 10 साल बाद, है ना, वो नहीं सीख पा रहे हैं.
फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूं. आई वाज डूइंग पीएचडी एट आईआईटी दिल्ली. So our diplomat, a foreign diplomat, was visiting IIT Delhi. So he asked one of the professors of computer science, which programming language do you teach your students? है ना. अब हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे साहब हम लोग पाइथन पढ़ा रहे हैं, पहले जावा पढ़ाते थे, उससे पहले सी प्लस प्लस थी, उससे पहले सी थी, उससे पहले पैस्कल थी, उससे पहले फोर्ट्रैन थी. You know what that professor of computer science at IIT Delhi said? He said, we don't teach them language, we teach them programming. This is a classical example of aspects of learning that will endure. आपने एक बार उसको प्रोग्रामिंग सिखा दी तो अब लैंग्वेज का सिंटैक्स बदलता रहेगा. जो नई लैंग्वेज आएगी वो पिक कर लेगा, बिकॉज ही और शी नोज प्रोग्रामिंग. तो सेंट्रल जो उसका थीम है वो हमें सिखाना चाहिए. एंड दे मस्ट बी लिमिटेड टू मैनेजेबल नंबर. इतने ज्यादा ना कर लीजिए कि वो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं. तो जैसे मैं थंब रूल दूं आपको, जहां जहां यूनिट वाइज आपका सिलेबस बना हुआ है, हर यूनिट का जो सेंट्रल आइडिया है उसको आप एक सीओ बना लीजिए. 4 यूनिट 4 सीओ. ठीक. तो उससे आपको डिजाइन भी आसान होगा, असेसमेंट भी आसान होगा. ठीक. And they should be specific enough to be measurable, because this is most important and fundamental to OBE. What you can't measure, you can't control. तो ऐसा स्पेसिफिक रखिए कि उसको आप मेजर कर सकें. अब थोड़ा सा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करें. बेंजामिन ब्लूम थे. चलिए मैं थोड़ा सा 1-2 स्लाइड स्किप करके यहां आता हूं. देखिए सबसे पहला लेवल ऑफ लर्निंग होता है नॉलेज, फिर होता है कॉम्प्रिहेंशन, फिर होता है एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल, दुनिया गोल है, ये नॉलेज है. आपने नॉलेज ले ली, रट लिया आपने, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, नॉलेज हो गई. उसको कॉम्प्रिहेंड करना, गोल से क्या मतलब है. इज इट सर्कुलर, इज इट इलिप्टिकल, इज इट स्फेरिकल, इज इट फ्लैटेंड एट द पोल्स. यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड दैट. गोल का क्या मतलब है. गोल का मतलब चौकोर नहीं है, ये समझना. फिर अप्लाई करना कि अरे दुनिया गोल है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, दिन रात बदल रहे हैं, सीजन्स बदल रहे हैं, है ना. सो लर्निंग इज एडवांसिंग इन दिस डायरेक्शन. सबसे पहले नॉलेज है, फिर कॉम्प्रिहेंशन है, फिर उसको अप्लाई कर सकें आप. अप्लाई नहीं कर पाए तो बेकार है. फिर एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन. देखिए एनालिसिस और सिंथेसिस में डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं. मान लीजिए एक कोई सिस्टम है. दैट सिस्टम मे बी एनी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, कोई एक सिस्टम है. उसका कुछ इनपुट होगा, कुछ आउटपुट होगा, है ना. अगर आपको इनपुट पता है, सिस्टम पता है, आउटपुट निकालना है, दैट इज एनालिसिस. Analysis is when you know the system, you know the input, you have to find out the output. That is analysis. If you know the input, you know the output, you have to find out the system. That is synthesis. You know the input, you know the output, you have to find out the system. That is synthesis, which is more challenging than analysis. Challenge तो नीचे से ऊपर बढ़ता ही जा रहा है. Knowledge से challenging comprehension, उससे challenging application, then analysis, then synthesis, and finally at the top is the evaluation. अगर evaluation proper नहीं किया तो all these will fall flat on their faces, है ना. अब फिर इसमें लोगों ने कुछ जैसे अंडरसन एंड कर्थवॉल ने कुछ इसमें एडिशंस किए. टू रिमेंबर, टू अंडरस्टैंड, टू अप्लाई, टू एनालाइज, टू इवेलुएट, और उन्होंने ऐड किया टू क्रिएट, है ना, क्रिएशन. अब देखिए 2 टर्म्स आपने सुनी होंगी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन. व्हाट इज द डिफरेंस. ए से बी तक जाने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए रास्ता ही पता नहीं था, किसी ने रास्ता निकाला, दैट इज इन्वेंशन. और दूसरा आदमी आया, रास्ता तो था लेकिन उसने एक बेहतर रास्ता निकाला, दैट इज इनोवेशन. Invention is when you don't even know the route and you found out the route. That is invention. Somebody who found a better route, that is innovation. फिर एक वर्ड होता है डिस्कवरी. तो इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फर्क है. इसके लिए मैं आपको एक जोक सुनाता हूं, उससे आपको याद रहेगा इन्वेंशन डिस्कवरी का डिफरेंस. एक बच्चे ने अपने अब्बा से पूछा, डैड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी. सो हिज डैड सेड, लुक सन, इट इज लाइक दिस.
आई डिस्कवर्ड योर मॉम एंड देन वी इन्वेंटेड यू। बाप कह रहा है बेटे से, आई डिस्कवर्ड योर मॉम एंड देन वी इन्वेंटेड यू। तो जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको ढूंढना तो डिस्कवरी है, और जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, टू क्रिएट, दैट इज इन्वेंशन या इनोवेशन, है ना। सो इनोवेशन इज समवेयर इन बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, कि राउट पता ही नहीं था, पता किया इन्वेंशन, और था राउट तो था लेकिन बेटर राउट निकाला, दैट इज इनोवेशन। तो ये इन्होंने इसमें ऐड किया, टू क्रिएट। एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, दे आर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये जो है तीनों, दे आर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी हर बच्चे के अंदर ये तीन तो होने चाहिए। ऊपर वाले सिर्फ अच्छे बच्चों में होंगे, सब में शायद ना हो पाए। इसीलिए जब आप क्वेश्चन सेट करें एग्जाम में, तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को ध्यान में रखिए। कुछ क्वेश्चन नॉलेज पे हो, कुछ कॉम्प्रिहेंशन पे हो, कुछ एप्लीकेशन पे हो, कुछ एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन पे भी हो, so that you are able to differentiate between the good students and the average students. Average students should be able to do the lower order 3, and good students only will be able to do 4, 5 and 6. तो अब ओबी स्टेप्स हमारे क्या हो गए? डिफाइन आउटकम्स, डिजाइन करिकुलम, डिलीवर इंस्ट्रक्शंस एंड डॉक्यूमेंट योर रिजल्ट्स। देखिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सारी एक्सरसाइज डॉक्यूमेंट नहीं की, कल को आप रिटायर हो गए, आपने जॉब चेंज कर दी, तो वही बात है कम्युनिकेशन वाली। द पर्सन हु इज स्टेपिंग इन योर बूट्स विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आप डॉक्यूमेंटेशन छोड़ जाएंगे, एंड द डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं ना, इट शुड बी सेल्फ स्पीकिंग। उसमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, कह रहे ये तो पता होगा, ये तो आता होगा, नहीं, आप हर चीज को स्पेसिफाई कर दीजिए। डॉक्यूमेंटेशन, देखिए डॉक्टर्स लोग पूरी हिस्ट्री लिखते हैं पेशेंट की, क्यों लिखते हैं? ताकि वो कहीं दूसरे ओपिनियन के लिए जाए, इसकी मेडिकल कॉलेज चेंज करे, तो उनको पता हो कि भाई क्या क्या हो चुका है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डॉक्यूमेंट योर रिजल्ट्स एंड डिटरमिन एडवांसमेंट्स। एडवांसमेंट्स ना किए तो इसका मतलब आपने मेजर तो किया, फिर कंट्रोल नहीं किया। अरे क्या फायदा हुआ मेजरमेंट का? अगर ये सारा तो मेजरमेंट हुआ और एडवांसमेंट ना किया, तो इसका मतलब आपने एनहांसमेंट या कंट्रोल नहीं किया। सो दैट ऑल फॉल्स फ्लैट। अब देखिए एक ब्लॉक डायग्राम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो मैं आपको समझा सकूंगा। दिस इज अ ब्यूटिफुल डायग्राम फॉर टॉकिंग अबाउट द असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट। देखिए हर जगह हम बात करते रहे इवैल्यूएशन की, है ना, इवैल्यूएशन एट द टॉप, ये नहीं किया तो सब बेकार है ना। टू इवैल्यूएट, अंडरसन कर्थफॉल ने भी रखा, एंड व्हाट यू कांट मेजर यू कांट कंट्रोल। तो मेजर कैसे किया जाए, ये लर्निंग आउटकम्स मेजर कैसे किए जाए, इसको समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। कोई एक प्रोग्राम है बीई इन ट्रिपल ई, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, बीएससी इन केमिस्ट्री ले सकते हैं, एमए इन हिस्ट्री ले सकते हैं, है ना, कुछ एमएससी इन जियोलॉजी ले सकते हैं, एनी प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम है, उसके नाम के ऊपर मत जाइए, कोई भी प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या है ना, उस प्रोग्राम के जो कोर्सेज हैं उनका रिजल्ट क्या है, वो आएगा सीओ इवैल्यूएशन का डायरेक्ट कंपोनेंट, है ना। कितने परसेंट बच्चे पास हुए, किस सीओ में कितने नंबर लिए उन्होंने। आप जो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, हर क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन का सीरियल नंबर होगा, क्वेश्चन होगा, और साथ में 2 कॉलम्स और होंगे, जिसमें आप एक में बताएंगे कि किस सीओ के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई एक यूनिट से एक सीओ, तो उस यूनिट के जो क्वेश्चंस होंगे वो CO1 के होंगे, यूनिट 2 के जो क्वेश्चंस होंगे वो CO2 के होंगे। और उसका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल भी बताइए कि was this an application question or was it a comprehension question or was it an analysis or was it a synthesis। टैक्सोनॉमी लेवल भी बताइए उसका। अब CO1 में सारे बच्चों को कितने नंबर मिले, वो उस सीओ का डायरेक्ट अटेनमेंट हो जाएगा। इनडायरेक्ट अटेनमेंट आएगा कोर्स एंड सर्वे से, बच्चों से ही पूछिए एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग अ कोर्स। हर सेमेस्टर के 6 कोर्सेज हैं मान लीजिए, तो 6 कोर्सेज का अलग अलग फीडबैक लिया जाएगा, और टीचर उनसे पूछेगा कि तुम बच्चों तुम खुद बताओ
CO1 तुम्हारे अंदर कितना आ गया, CO2 कितना आ गया, वो परसेंटेज में बताएं। कोई कहेगा 75% CO1 आया है, कोई कहेगा 70%। आप उसको एवरेज ले लिए, पूरी क्लास का एवरेज, तो वो उस CO का अटेनमेंट बन गया। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे इन अ रेशियो 75-25 या 80-20, जो भी रेशियो। डायरेक्ट कंपोनेंट 75% जो कोर्स के रिजल्ट से आया है, और इनडायरेक्ट कंपोनेंट जो स्टूडेंट्स ने खुद बताया है, वो रिमेनिंग। अब आप सोच रहे होंगे 75-25 ही क्यों, या 80-20 ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? मेरा इस पे जवाब ये कि जो भी हो वो पहले से डिक्लेयर कीजिए। आप कुछ रख लीजिए, लेकिन उसको पहले से सबको बताइए। बाद में रूल ऑफ द गेम चेंज मत कीजिए कि अरे CO असेसमेंट अच्छा नहीं आया तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट कंपोनेंट कम कर देते हैं, इनडायरेक्ट बढ़ा देते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। ऐसा नहीं होगा, आप बाद में नहीं कर सकते, पहले से डिक्लेयर करना होगा। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे, डायरेक्ट कंपोनेंट, इनडायरेक्ट कंपोनेंट, दैट विल बिकम द CO इवैल्यूएशन। फिर ये CO इवैल्यूएशन डायरेक्ट कंपोनेंट बन जाएगा PO इवैल्यूएशन का, है ना। वो POs जिसमें ये CO मैप है, उस PO का डायरेक्ट कंपोनेंट। और इनडायरेक्ट कंपोनेंट आएगा एलुमनाई सर्वे से, एग्जिट ग्रेजुएट सर्वे से। जब बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है, उससे फीडबैक लीजिए कि तुम ग्रेजुएट कर रहे हो, बताओ तुम्हारे अंदर PO1 कितना आया, PO2 कितना आया, PO3 कितना आया, PO12 कितना आया। 12 है तो 12 के 12 पे पूछा, एवरेज कर लिया। ऐसे एलुमनाई से पूछा कि आप हमारे यहाँ के पढ़े हुए, ये बताइए। आप फील्ड में जाने के बाद अब आप थोड़ा सा इसका असेसमेंट कर दीजिए कि आपके अंदर PO1 कितना आया था, PO2 कितना आया था, PO3 कितना आया था। वो इनडायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ PO इवैल्यूएशन बन गया। इन दोनों को आपने कंबाइन कर लिया, 75-25 या 80-20 या 70-30, जो भी है, बट डिक्लेयर इट बिफोर हैंड। ये PO इवैल्यूएशन बन गया इनडायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ PEO इवैल्यूएशन, जिसका डायरेक्ट कंपोनेंट आएगा एम्प्लॉयर सर्वे से या उन एलुमनाई से जो 4-5 साल पहले ग्रेजुएट कर चुके हैं, 4 to 5 years और मोर, उनसे आएगा, है ना। मोर देन इक्वल टू, है ना, 5 साल से पहले जो गए हुए हैं। इसलिए कि PEO इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस्ड एलुमनाई। ठीक, तो एम्प्लॉयर से पूछिए, 5 साल पहले हमारे यहाँ से एक बच्चा पढ़ के गया था, आपके यहाँ एम्प्लॉय हुआ था, उसके ये PEO1, PEO2, PEO3 आप कितना फील कर रहे हैं, कितने हैं उसके अंदर। एंड दिस इज हाउ इट कंटिन्यूज। जो PEO इवैल्यूएशन आएगा वो डायरेक्ट कंपोनेंट बन जाएगा मिशन का, और उसका इनडायरेक्ट कंपोनेंट फिर आप फीडबैक लेंगे। वो मिशन का अटेनमेंट बन जाएगा इनडायरेक्ट, बन जाएगा डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ विजन। उसका फिर आप फीडबैक लेंगे, मैनेजमेंट से लेंगे, गवर्नमेंट से लेंगे, है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे, प्रोफेशनल बॉडीज से लेंगे। वो बन जाएगा आपका विजन का अटेनमेंट। सो दिस इज हाउ द असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट वर्क्स। मैंने, आपको याद होगा, मैंने जब ये पिरामिड दिया था तो मैंने कहा था असेसमेंट नीचे से ऊपर होता है। यानी सबसे पहले CO असेसमेंट, उस CO असेसमेंट से PO असेसमेंट, PO असेसमेंट से PEO, PEO से मिशन, मिशन से विजन का असेसमेंट। अच्छा, सर आवाज नहीं आ रही। Sir, audio problem. Sir, your audio is muted. Sir, लगता आपकी है audio फोन कॉल को- पे होंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए।
आवाज नहीं आ रही है सर। कहीं और बिजी हो गए होंगे। I think some technical error is there. उनका presentation भी share होना बंद हो गया। फैजा मैम होंगी कहीं ना कहीं। सर की आवाज नहीं आ रही है। कोई टेक्निकल इशू है मे बी। सर ऑडियो प्रॉब्लम। सर लिफ्ट हो गया। सर तो कनेक्ट ही नहीं है। आवाज नहीं आ रही है सर। तो टेक्निकल लगता है कुछ इशू आया है। हम लोगों को थोड़ा शायद वेट करना पड़ जाएगा। हो सकता है टेक्निकल इशू हो। तो लोग का वैसे होगा ही है, क्या करबे। तो लोग का कैसे खराब हो गया। अतुल सर बीच में करो को। हाँ तो अब ले मंगवा तो लिए कुछ होगा डर है तो क्या करिए। क्या कहा। क्लास बची है कि खत्म हो गई, कोई बता देगा। टाइम तो 10:30 तक का है। कोई नंबर काट लेगा क्या।
सभी लोग प्लेटफॉर्म पर हैं तो हम एक बात करना चाहते हैं और सबकी जानकारी के लिए ये बेहतर रहेगा कि ये जो हम लोगों का 20 इंडक्शन है और ये 21 का करके दे रहे हैं, तो इसका इशू कैसे सॉल्व होगा? इसके विषय में हमें बात करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि हम लोगों को जो एनओसी मिला था कॉलेज से, जी वो बिल्कुल। 20 इंडक्शन के लिए मिला था। मान लीजिए राइट सर। रिलीविंग में तो 21 की चर्चा नहीं है, लेकिन अगर ये 21 का सर्टिफिकेट देंगे तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा ना हम लोगों के लिए। मैंने पूछा था। इनवैलिड तो नहीं सर होगा मैंने जो इस बारे में मजहर सर से फोन पर बात किया था, क्योंकि मेरा भी एनओसी 20th FIP का ही था। तो मजहर सर ने बोला ऐसा कोई भी इशू नहीं है। उन्होंने जो रजिस्ट्रेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 20 और 21, तो दोनों ग्रुप्स में इक्वल नंबर ऑफ क्लासेस चलेंगी और हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें डेट मेंशन्ड होगी 5 Feb to 11th March की। और नहीं ये जो मैम, काउंटिंग है ये यूजीसी और AMU के लिए रेलेवेंट है, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो मेरी कल ही इस बारे में मजहर सर से बात हुई थी। नहीं तो लेकिन 20 ये सारी है कि जैसे उनके वेबसाइट पे जब हम लोग जा करके चेक करेंगे अपना नाम, तो हमारा लिस्ट में तो 21 में नाम आएगा ना, 20 में वो तो कोई होगा। इशू नहीं है। वो कह रहे थे कि सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों एक ही कॉलेज से हैं। वो बॉटनी से है, मैं पॉलिटिकल साइंस से, और हम दोनों ने एनरोल किया था। तो उसी के थ्रू मुझे पता चला उसका 20th है, मेरा 21। तो कल मैंने कॉल की तो सर ने बोला ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। हमने जानबूझ के 2 बैचेस में डिवाइड किया है। तो जिनका लेक्चर आज हमारे साथ हो रहा है, कल या परसों उनका लेक्चर उनके साथ होगा। तो कोई इशू नहीं है, मतलब सर्टिफिकेट का भी इशू नहीं है, क्लासेस का भी इशू नहीं है, अटेंडेंस का भी इशू नहीं है। नहीं मैम, बात मेरी भी हुई थी। वो बात ठीक है, लेकिन तो मेरा उन कंसर्न ये है कि नहीं 2 दिया, बैचेस हैं, कहा जो कर रहे वेबसाइट हैं आप, पे जो लिस्ट ऐड होगी, ठीक है, वो जो लिस्ट होगी वो तो लेकिन हमें 20 और सर्टिफिकेट 21 का का। चाहिए ना। गूगल क्लासरूम में 21 का बना रहे हो, कोई सर्टिफाइड आंसर नहीं है, ये इनलीगल है। अगर 21 का दे दिए तो फिर ये आगे चल के दिक्कत करेगा प्रमोशन में। एग्जैक्टली ये हमें प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि उनकी जो लिस्ट होगी ना उसमें हमारा नाम 20, जैसे मेरे कॉलेजेस में जो और लोगों ने FIP प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उनका कहना है कि एक लिस्ट जारी करती है यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे या UGC की वेबसाइट पे। तो हमारा नाम तो 20 नंबर वाले FIP में नहीं होगा, हमारा तो 21 वाले में होगा। और हमने तो जो छुट्टी ली है, जो NOC हमें मिला है, वो तो 20 नंबर के इस पर ये लिया सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है 21st, क्लासरूम में बस। भी तो 21 कर दिया है। हाँ, आप लोग एक बार क्लासरूम बात कर लीजिए, कांटेक्ट नंबर ये है, हेल्पलाइन। क्या करते हैं ऐसा है ना, कल इस बारे में मैडम से पूछ लेते हैं। जी जी, मुझे लग रहा है सर कि डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्टर मैडम जो है ना, उनसे इस बारे में कल स्टार्टिंग में इस रूम बात किया जाए। जी सर, नहीं तो सर है थोड़ा सर को सुन लो। जी बिल्कुल। बाद में पता अभी भी लग तो कर सकते हैं 11 बजे से, क्योंकि जब कोई दूसरा स्पीकर आएगा तो हाँ वो इंट्रोड्यूस बिल्कुल, अभी करेंगे, वहां हाँ बात कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर जी मैडम आएंगे जी जी बिल्कुल, अभी भी किया Participant, जा please. सकता है। Participants, please. Sir got disconnected. Okay. ठीक सर, ओके सर। Hello. Okay. Participants, कितनी देर से नहीं आवाज आ रही? सर सर हो 15 गया 15 10 मिनट मिनट। से सर आवाज नहीं आ रही। Okay, Yeah. I'll just call him. Just hold on. एक इनपुट है कि लाइब्रेरी एक्सेस में जो मतलब लाइब्रेरी एक्सेस हमको मिला है उसमें FIP 20 ही करके है दिया हुआ। वो FIP 20 करके है, लेकिन जब उसको लॉगिन कर रहे हैं ना तो उसमें FIP 19 करके लिख करके आ रहा है। जी बिल्कुल। अब देखिए, है ना, तो कल हम उसमें लॉगिन किए थे तो उसमें जो हम लोगों का रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप नंबर है और मेल ID है उससे लॉगिन हो गया। लेकिन जब लॉगिन करने के बाद ऊपर में जो हेडिंग है उसका FIP 19 करके है। तो मुझे लगता है कि राइट। शायद ये वो भी देखना 19 पड़ेगा। कुछ डालने पर उस पर वो और दूसरी चीज़ों को ये क्लियर करनी होगी कि ये तो डालना है टीचर। ई लाइब्रेरी अगर कोई एक चीज ज्वाइन किया एक हो चीज तो ये थोड़ा भी उसका कंफर्म, प्रोसेस बता दीजिए। Sir is online. Please be on mute. Everybody, please be on mute. Sir, unmute yourself. Sir, please unmute कर लीजिए आप।
Okay, tell me how long did you listen to me and where did I disconnect? Can anybody tell me? Sir, approximately 10 minutes. 10 minutes. नहीं कहाँ तक कर लिया था हमने डिस्कस, ये तो सर बताइए पीईओ की बात चल रही थी, प्रोग्राम जी। आउटकम्स की, प्रोग्राम आउटकम्स की बात चल रही थी सर। नहीं, असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट देख लिया आप लोगों ने? ब्लॉक डायग्राम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ब्लॉक डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। यू वर डिस्कसिंग ब्लॉक डायग्राम, आफ्टर दैट इट गॉट डिस्कनेक्टेड। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, मैं वापस वहीं चला जाता हूँ। इस स्लाइड को कर रहा था मैं शायद, है? जी। अच्छा चलिए ठीक है। ओके, तो आई टोल्ड यू दैट assessment is carried out over here and then improvement is done this way. Whenever you have assessed CO evaluation, you compare it with the target CO, whatever be the difference. Similarly, whatever be the difference between target PO and the achieved PO, and between target PO and the achieved PO, you propose the improvement based on that. The OB admin does it so that the next time around the program is a better program, right? So this in a nutshell is the block diagram for assessment and improvement. चलिए अब मैं आगे. A result of assessment is used for either curricular improvements or improvement of course delivery in assessment or revising, redefining the POs themselves. तो 3-dimensional approach रहेगी, या तो curriculum को improve कर लीजिए, या अपने delivery को improve कर लीजिए, या PO और PSO को change कर लीजिए, है ना? तो ये OB framework है. Mission vision at the institute level, PEO and program outcomes at the program level, and course learning outcomes at the CO level. तो this cycle has to go on. पहले आप assess करेंगे, assess के बाद आप improvement करेंगे, neither the syllabus or the teaching methods or the learning activities or the assessment tools. और ये आपके stakeholders रहेंगे जिनके input और feedback आप लेते रहेंगे, है ना? तो ये process for redefining of POs, alumni survey, graduate survey, industry program coordinator, module coordinator, POs, assessment, faculty views. On the basis of that, you will assess whether there is a need for redefining POs. If yes, then curriculum, board of study does, delivery methods, module coordinator does, and POs themselves, the program assessment committee does, and department advisory board accepts with review or after review, whatever the case. When to assess PEOs? Few years after graduation, 4 to 5 years. Program outcomes upon graduation, and course outcomes upon the completion of every course in every semester. Redefining process of PEOs is very similar. Alumni survey, graduate survey, industry coordinator, module coordinator, POs assessment, faculty views. Is there a need for redefining POs? If yes, curriculum by the board of studies, regulations by the academic council, and program assessment committee accepts or reviews, and department advisory board finally approves. So this is all what I had covered. If there are any questions, we can take those questions now. जी बताइए, कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? सर प्रणाम, दिस इज रमेश चंद्र यादव from जी Library, sir. जी First यादव of all, जी. sir, I would like to congratulate you such a nice and brainstorming session. Sir, I have a couple of questions. जैसे Yes, सर sir. आपने बताया कि यूनिवर्सिटी एक्ट, स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, जी इन सब की जो एक हायरार्की बताई सर, इसमें अगर हमें संशोधन करना या कराना हो तो क्या प्रोसेस होगी, नंबर 1. और नंबर 2 सर, ये जो हमारे सीओ पीओ ये सारे प्रोग्राम्स हैं, तो कॉलेजेस को ये सब तो पावर होती नहीं, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे डिसाइड हो जाता है, क्योंकि सिलेबस बोर्ड ऑफ स्टडीज कराने की पावर यूनिवर्सिटीज को होती है, कॉलेजेस को नहीं होती है, जहां तक मुझे पता है. तो ऐसे में कॉलेज के टीचरों की भूमिका बहुत लिमिटेड हो जाती है.
और तीसरा सवाल है सर कि नैक अब तक जो एक्रेडिटेशन का कार्य करता था, शायद इसमें कुछ नया संशोधन हो रहा है, अब ग्रेडिंग की सिस्टम खत्म होने जा रहा है, खत्म हो गया है, इस पे कुछ नया हो तो सर बता दें प्लीज। थैंक यू सर। ठीक है। देखिए पहली बात तो ये, एक्ट जिसने बनाया वही संशोधन करेगा। एक्ट बना पार्लियामेंट में या असेंबली में तो वहीं जाना पड़ेगा अगर हमें उसमें एक्ट में कोई चेंज करना है। स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस ये या तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाती है या एकेडमिक काउंसिल बनाती है। तो जो बॉडी बनाती है वही उसमें संशोधन भी करती है। बस होता ये है कि तरीका ये है, देखिए बोर्ड ऑफ स्टडीज में कोई चीज पास हुई तो वो फैकल्टी कमेटी के सामने जाती है, फैकल्टी कमेटी से वो एकेडमिक काउंसिल, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड फाइनली इट गोज फॉर द अप्रूवल ऑफ विजिटर। Visitor in the case of Central University is the President of India, and in the case of the state university, it may be Governor of the state. तो ये प्रोसीजर होता है उसमें संशोधन का। पहली बात तो ये हुई। आप सही कह रहे हैं, कॉलेज लेवल्स पे नहीं होती, लेकिन जब ऑटोनॉमी मिल जाती है तो ऑटोनॉमी मिलने के बाद, इसीलिए ऑटोनॉमी के पीछे लोग इतना कोशिश करते हैं, ऑटोनॉमी मिल जाने के बाद आप उसमें अपना सीओ, अपना पीओ डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों चीजें देखिए वही मुर्गी अंडे वाली बात है कि आपको ऑटोनॉमी तब मिलेगी जब आपको एक्रेडिटेशन होगा, और एक्रेडिटेशन के लिए आपको सीओ पीओज चेंज करने पड़ेंगे। तो उसमें तरीका ये होता है, जो एग्जिस्टिंग सीओज पीओज जो यूनिवर्सिटी आपको दे रही है उस पर अच्छे से काम करके आप एक्रेडिटेशन ले लीजिए। जब एक्रेडिटेशन मिल जाएगा तो ऑटोनॉमी मिल जाएगी, ऑटोनॉमी मिल जाएगी तो सीओ पीओ आप चेंज कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, अब तीसरी बात रही कि देखिए फ्यूचर में क्या होगा, नैक रहेगा, एनबीए रहेगा, नहीं रहेगा, वो मर्ज करके एक बॉडी बन जाएगी, अलग अलग होगी, क्या जब होगा, यू टॉक ऑफ द ब्रिज व्हेन यू रीच द ब्रिज, जब होगा तब देखी जाएगी। जो आज की डेट की बात है वो हम आज की बात कर रहे हैं, ठीक है जी सर। सर एक सवाल और था, एक जिज्ञासा थी, जैसे आपने सर वॉशिंगटन एकॉर्ड की बात की और एग्जाम्पल दिया कि अभी रशिया यूक्रेन का है, तो जैसे यूक्रेन में अपने यहाँ से बहुत सारे बच्चे मेडिकल के लिए गए हुए थे, तो क्या शायद अपने यहाँ सर ऐसी अकॉर्ड नहीं थी, यूक्रेन उसमें नहीं था कि बहुत सारे उनकी वहां से आने के बाद डिग्री को लेकर समस्या हुई, एडमिशन को लेकर समस्या हुई। सर इस पे आप क्या कहना चाहिए? अकॉर्ड, देखिए अकॉर्ड इस बात का था कि वो डिग्री देते तो सब कोई मानता, जब उन्होंने डिग्री दी ही नहीं तो क्या मानी जाएगी डिग्री, है ना। वो डिग्री दे देते तो मानी जाती, जब डिग्री कंप्लीट ही नहीं हुई वहां से तो वो बच्चे दे वर कॉट इन बिटवीन। बट नॉट टू वरी, मुझे जहां तक पता है कि अब वो बच्चे जाके वो डिग्री वापस पूरी कर रहे हैं यूक्रेन में, एंड आई नो स्पेसिफिक केस जिसमें जाके उस बच्चे ने डिग्री पूरी कर ली एमबीबीएस की। तो सर ये क्या इंटरनेशनली क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा नहीं होती कि बच्चा कुछ साल वहां पे पढ़ा हो, जैसे विद इन कंट्री होती है कि इतने क्रेडिट का कोर्स यहाँ से किया है? उसका अलग एमओयू होता है, उसका अलग एमओयू होता है कि एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स का। ओके सर, वो हो सकता है एक्रेडिटेशन की बेसिस पर, लेकिन करना पड़ेगा उसको अलग से। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बताइए। वालेकुम, जी बताइए। मेरा प्रश्न, हाँ मेरा प्रश्न है सर, जो आपने ये बताया था ब्लूम के अकॉर्डिंग, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, तो इसमें जो एप्लीकेशन और एनालिसिस में मैं कंफ्यूज हूँ सर थोड़ा सा। ये है कि पहले अप्लाई करके एनालिसिस करते हैं कि एनालाइज करके अप्लाई करते हैं सर, इसको एग्जांपल के द्वारा थोड़ा समझा दीजिए मुझे। हाँ, नहीं देखिए, एप्लीकेशन तो आपकी हो सकती है, थ्योरेटिकल एप्लीकेशन भी हो सकती है ना। जैसे हमने लीवर पढ़ाया बच्चे को, तो लीवर में हमने उसको क्लास में पेंसिल के नीचे रबर रख के और उसको एक तरफ से उसको उठा के दिखा दिया हमने, ये जैसे ये पेंसिल है, हमने क्लास के ही अंदर यहाँ पे उसका फलक्रम बनाया और उसको इस तरह से ऑपरेट करके बता दिया, वे लीवर ऐसे चलता है। तो एप्लीकेशन तो ये हो गई, लेकिन एनालिसिस तब होगी जब हम उसको एक हैंडपंप पे ले जाके कहीं पे एक यूजफुल काम करके उसको दिखाएंगे, है ना, तब वो एनालिसिस बनेगी कि हैंडपंप कैसे चल रहा है, या किसी लेबर ने कोई हैवी वेट कैसे उठाया। अप्लाई का मतलब होता है, मतलब किसी के लीवर को सर यदि हम ट्रीट करते हैं एज ए डॉक्टर, तब वो अप्लाई कहा जाएगा कि नहीं? क्या करते हैं डॉक्टर को? डॉक्टर यदि एज ए डॉक्टर किसी के लीवर को हम ट्रीट करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तब वो अप्लाई कहा जाएगा कि
नहीं किया जाएगा? नहीं, तब अप्लाई नहीं कहा जाएगा, वो तब अप्लाई नहीं कहा जाएगा, है ना। अप्लाई तब होगा जब आप एक मॉडल के सामने उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, वो आप बता सकें, देन दैट विल बी एप्लीकेशन। ठीक है। जी जी, धन्यवाद। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? छोटा सा सवाल है। जी बताइए। Throughout your lecture, you have been criticizing the Indian system of education and giving examples from apart from your own college and you. So, are there any good examples from India also, so that we can imbibe? मतलब हमने देखा है कि विजन मिशन जनरली कॉपी पेस्ट ही होता रहा है। हाँ। नहीं, गुड सिस्टम ऑफ अच्छा है जी। नहीं, देखिए, सिस्टम में बुराई नहीं है, सिस्टम जिस तरह से हमने ट्रीट किया उसमें बुराई है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वैद और बहुत अच्छे अच्छे हकीम गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया, अपने बेटे तक को नहीं सिखाया। अगर वो सिखा देते तो उनका बेटा उनसे बेहतर हकीम वैद बनता, उनका पोता उससे बेहतर होता, एंड द सिस्टम वुड हैव डेवलप्ड, बट समहाउ थिंग्स डिड नॉट डेवलप, एंड दैट इज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। Sir, I have a question. जी। First of all, thank you very much, sir, for such an informative and wonderful lecture. सर, मेरा क्वेश्चन है कि यूजीसी से एक लेटर आया हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड में आप रिसर्च स्कॉलर ले सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपने ऑर्डिनेंस और स्टैट्यूट में उसको मॉडिफाई नहीं किया या अप्रूव नहीं किया है, तो इसका क्या प्रोसीजर हो सकता है? नहीं, अडॉप्ट नहीं किया, इसको कहिए अडॉप्ट नहीं किया उन्होंने। अडॉप्ट के लिए देखिए, मैंने आपको बताया ना, बोर्ड ऑफ स्टडीज से पास करके उसको एकेडमिक काउंसिल में भेजिए। एकेडमिक काउंसिल या तो उसको अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए कि यूजीसी का डायरेक्टिव है, तो उसको अप्रूव ही होना पड़ेगा, विद मॉडिफिकेशन और विदाउट मॉडिफिकेशन। तो आप लोअर लेवल से उसको स्टार्ट करवा दीजिए, डिपार्टमेंट लेवल की बोर्ड ऑफ स्टडीज से उसको पास करवा के भिजवा दीजिए। सर, सेम क्वेश्चन है जी। सर, जो अभी सर ने क्वेश्चन किया था, प्रोबेशन पीरियड में आप सुपरवाइजर बन सकते हैं। सर, मेरी भी यूनिवर्सिटी सहारनपुर है, तो वहाँ हमने अपना एप्लीकेशन दिया था, और वीसी सर ने बोला कि हम इसको अभी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी पेरेंटल यूनिवर्सिटी मेरठ है और वहाँ 3 इयर्स का है। लेकिन फिर फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको 2 फेब में इस पे अपना डिसीजन ले रहे हैं और बना देंगे। तो वहां सर फिर जरूरत नहीं पड़ी है, तो भी हमें फिर जो आपने बताया, फिर भी वहां लेटर वगैरह लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ काम तो लिखिए। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, तो अभी हम लोग एक मीटिंग और करेंगे, एक और लेक्चर मेरा आपके साथ होगा मैनेजिंग एलुमनाई रिलेशंस को, वो बाद में होगा। तो अगर आज के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के बच रहे होंगे तो हम लोग उसे आगे भी ले सकते हैं ना, विल टेक इट लेटर। ओके, श्योर सर। आप लोग उसको नोट रखिए, प्रॉब्ली 16 को we'll have another session with you. Sir, can you share your PPT answer group, sir, please? हाँ, ये मैंने PPT उनको मजहर साहब को दे दी हैं, and he'll share with all the participants, right? Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. हाँ,